Hello, everybody. Good morning. I'm Dr. Mukesh Parekh, and I'm live. Let us start today's class. Kindly show your presence. Kindly show your presence. Okay. In our last class, we were talking about the matter of England, matter of France, matter of Rome. But as you know that I already had given you the topic as it is on my blog. So there is no need to elaborate that particular topic because in matter of England, we mostly study uh, the the stories, the myths, the legends of King Arthur. So now we are still hovering about around the Middle Ages, and there keep coming the references from the Anglo-Saxon period, and so altogether somewhere there are certain things which shaped the coming ages of English literature, English history. And as you all know that somewhere English literature or literature of any place is shaped by the place, the geography, the culture, the political happenings, and all such things. So in today's class I will discuss with you 100 years of war. In this we will divide this whole class in certain things, and in one part I'll be discussing this 100 years war. When you open any book of English literature, you mostly find that the first few hundred pages of any book of history of English literature, the writers mostly talk about 100 years of war or the wars of roses and all. Now, what are the significance of these? Why we mostly, when we start the history of English literature, or when you are preparing yourself for a history of English literature, or say literature as such, why we talk about 100 years of war? So, point after point, I'll be talking about 100 years of war. First of all, the war, the 100 years war, it was fought from 1337 to 1453. So exactly you cannot say that they are 100 years, they are more than 100 years actually. And in this 100 years of war, there also comes the wars of roses. So mostly the students don't understand. Actually, with the जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड में हुआ, आपको मालूम है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बिफोर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंग्लो सेक्सन लोग रहा करते थे, जो हम पहले बातचीत कर चुके हैं. तो एंग्लो सेक्सन के ऊपर जब नॉर्मन अटैक हुआ, तो आप अगर सेट के क्वेश्चंस, नेट के क्वेश्चंस, और जितने भी प्री पीएचडी टेस्ट आजकल हो रहे हैं, और जैसे कि मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड के जो पीजीटी जिसको बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं, एंड आफ्टर अ ग्रेट रिसर्च आई केम टू नो दैट दे हैव बीन आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. तो 100 years of war ने इंग्लिश लिटरेचर को कैसे शेप किया, हाउ इट शेप्ड टू ब्रिंग अबाउट द इंग्लिश रेनेसां and that golden period when Shakespeare, Marlowe and other writers wrote. So आपको बस कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आज का लेक्चर अटेंड करना है. The first one is 1337 to 1453. That is the age of 100 years of war. Second is ये दो घरानों के बीच में, these wars were actually fought between two clans, जिनको अपन लाइन्स ऑफ किंग्स बोलते हैं. The first one is House of Plantagenet. लिखते जाइए आप लोग, House of Plantagenet, because I have not uploaded these details on my blog today. Though I will ask you to open the blog today on my website also, because I have uploaded 2 poems there, and we are going to read 2 poems of John Donne. But before that, as I told you that we are going to divide the whole lecture into 2 or 3 sections. So in the first section, I am discussing 100 years of wars. तो बता चुका हूं मैं ऑलरेडी 1337 से लेकर के 1453 तक ये लड़ी गई थी. सेकेंड वन, दैट हाउस ऑफ प्लेंटेजेंट एंड हाउस ऑफ वेलवॉ, VALOIS, वेलॉय, इसको ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं. अब हाउस ऑफ प्लेंटेजेंट है वो,
और हाउस ऑफ वेलॉय है वो किंगडम ऑफ फ्रांस है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये जो 100 ईयर्स ऑफ वॉर है ये एक तरह की आधिपत्य की लड़ाई है। इट्स अ वॉर ऑफ डोमिनेंस। अब ये डोमिनेंस में से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो विच आई हैव नोटिस्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। तो आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हाउस ऑफ प्लेंटेजेंट और हाउस ऑफ वेलॉयज है, इन दोनों के बीच में ये जो युद्ध हुआ 100 ईयर्स ऑफ वॉर जिसको हम बोलते हैं, ये एक तो सबसे लंबा युद्ध है, ऐसे कहा जाता है। इट्स मोस्ट नोटेबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मिडिल एजेस। एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन 100 ईयर्स के आसपास में 5 जनरेशंस ऑफ किंग्स ऑफ बोथ द क्लैंस, 5 पीढ़ियां दोनों ही खानदान की, इधर प्लेंटेजेंट की और जो है वो इसमें यूज हुई। ओके, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोड द हाइट ऑफ शिवलरी। जब हम लोग चौसर पढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है नाइट। सो व्हाई चौसर पेड अटेंशन टू नाइट? क्योंकि वो जो एज थी दैट वाज एन एज ऑफ वॉर। जरा अंदाजा लगाइए कि अगर वॉर्स नहीं हुई होती तो शिवलरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहादुरी, VALRY, ठीक है, शिवलरी के अंदर हम लोग लेते हैं तलवारबाजी आनी चाहिए, आपको घुड़सवारी आनी चाहिए। ओके, एंड इट्स डिक्लाइन, शिवलरी का हाइट भी नजर आता है 100 ईयर्स ऑफ वॉर में और उसका डिक्लाइन भी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंग्लैंड की हिस्ट्री आगे बढ़ती है, किंग एलिजाबेथ के आने से पहले तक अब राजाओं ने युद्ध में जाना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि शिवलरी को उतना इंपॉर्टेंस देना बंद हो गया। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वॉर्स ऑफ 100 ईयर्स ऑफ वॉर, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब 100 ईयर्स ऑफ वॉर एंड हुई तो उससे बोथ द कंट्रीज गॉट द नेशनल आइडेंटिटीज। मतलब आपको ऐसे समझना है कि इंग्लैंड और फ्रांस एक्चुअल में वेल मार्क्ड कंट्रीज नहीं थी 100 ईयर्स ऑफ वॉर के पहले। वो छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। जब हम लोग शेक्सपियर के ड्रामास पढ़ते हैं हेनरी से रिलेटेड, हेनरी 6 एंड हेनरी 4, तो एक्चुअल में कंट्री की वॉर नहीं थी। मैंने जैसे कि बताया आपको कि दीज क्लैंस, कुछ राजाओं के खानदानों की ये लड़ाइयां थी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, इफ यू जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली यू विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चंस देयर इन द एग्जाम। फ्यूडलिज्म का एंड हुआ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, और फ्यूडलिज्म से रिलेटेड दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड अस सर्टेन क्वेश्चंस इन एग्जाम। जब हम लोग स्टार्टिंग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। चल रहा है, इट्स ओके। Again, there is internet problem, friends. As yesterday, I could not take your class because of the slow this connectivity problem. I'm sorry. चलिए, क्या बात चल रही थी कि 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो है, एक तो उसका पीरियड मैंने बताया 1337 से 1453, और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी बातें साथ साथ में बता रहा हूँ। लैंकास्टर, हाउस ऑफ लैंकास्टर, हाउस ऑफ प्लेंटेजेंट एंड हाउस ऑफ वेलवॉर। अब बात चल रही है कि इसके 100 ईयर्स ऑफ वॉर जब चलती रही तो yes, I understand war plays a significant role in literature, but the best kind of literature is written when there is no war. Okay, so I exactly don't agree with you that war and literature are interchangeable, or say they are dependent on each other, because war creates disturbances, and that is why that we don't find a best kind of literature written in the Middle Ages. इसीलिए हम जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम नहीं देखते हैं कि कहीं हमें बहुत अच्छा लिटरेचर पढ़ने को मिल रहा है। लिटरेचर स्टार्टेड विद चौसर, और चौसर के वक्त तक आते आते वॉर्स वर्चुअली एंडेड एक्चुअली। चलिए बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। लिख लीजिए, लिखते जाइए, पॉइंट बनाते जाइए। दोज सीरियस स्टूडेंट्स हु आर रियली कमिंग टू अटेंड द लेक्चर, के 100 ईयर्स ऑफ वॉर पे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका क्या क्या रिजल्ट निकला। सो द एंड रिजल्ट वाज देयर वाज एन एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब आती है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 2 or 3 टर्म्स विच हैड ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, और मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले एग्जाम्स में भी पूछेंगे। द फर्स्ट टर्म इज वसाल। लिखिए एक टर्म, VASSAL।
जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूडलिज्म, तो वैसे अगर हम जमींदारी प्रथा की बात करें, फ्यूडलिज्म को कैसे समझोगे आप कि आपका मालिक कोई और है और आपकी जमीन को कभी भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो वसाल कौन होता है, लिखिए डेफिनेशन। ये एग्जाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के आरपीएससी के जब कॉलेज लेक्चरशिप के एग्जाम हुए थे तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एंड आई एम डैम श्योर दैट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। लिखो वसाल की डेफिनेशन, लिखो अ पर्सन regarded as having a mutual obligation to a lord or monarch in feudal system। तो एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है। अब मैंने कहा कि ये टर्म्स पूछी जाती है एग्जाम में, लाइक व्हाट इज वसाल व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 100 ईयर्स ऑफ वॉर के अंदर कौन जीता कौन हारा, ये किस तरह से एक वर्चस्व की लड़ाई थी, इसमें क्या चीज शामिल थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वसाल एक टर्म आया है, एक पर्सन होता है जिसको माना जाता है कि उसका म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है किसी मोनार्क या किसी लॉर्ड के, मतलब कि वो किसी लॉर्ड या मोनार्क के अंडर है और वो उसका वसाल कहलाता है, मतलब उसको कुछ ईयरली फीस देनी पड़ती है। ये एक टर्म है, ओके। सेकेंड टर्म आता है फीफ, लिखिए FIEF। You will also come across another term that is usually asked in the exam, and that is fief। फीफ या फीफडम आपको बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन मिलेगा, ओके। फीफ FIEF। सो द सेंट्रल एलिमेंट, लिखिए फीफडम का मतलब या फीफ का मतलब समझा रहा हूं मैं। इट इज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इट कंसिस्टेड ऑफ हेरिटेबल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय एन ओवरलॉर्ड टू अ वसाल हु हेल्ड इट इन फील्टी। बहुत सिंपल सा वर्ड है कि उसको कुछ फीफ देना पड़ता है। सेंट्रल एलिमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म है, कंसिस्टेड मतलब कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसा फीफ के तौर पर आपको देना पड़ेगा। आप वसाल हैं तो आपको अपने लॉर्ड को बार बार कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब अंदाजा लगाइए कि अगर जैसे मान लीजिए कि एक किराएदार है, ऐसे इसको समझ लेते हैं, एक किराएदार है और वो काफी सालों से बार बार रेंट दे रहा है, तो आपने देखा होगा इट हैज बीन अ प्रॉब्लम, है ना। जब हम लोग नोटिस करते हैं कि कोई किसी के प्रॉपर्टी पे रह रहा है और उसको उसका किराया दे रहा है, तो उसके मन में कई बार आता है कि मैं इतना किराया ऑलरेडी दे चुका हूं कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो जानी चाहिए। तो वसाल एक टर्म मैंने समझाई आपको, फीफ मैंने एक टर्म समझाई। अच्छा, फीफ में के बाद एक टर्म और आती है, दैट इज कॉल्ड फील्टी, FEALTY। फील्टी इज एक्चुअली अ लैटिन टर्म फॉर फी। लिख लीजिए फील्टी, FEALTY, फील्टी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक आप अपने लॉर्ड को जो फीस देते हो उसको बोलते हैं, ओके। और जब आप फीस देते हो तो आप फीफडम कहलाता है, वो आपका एरिया फीफडम कहलाता है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म, ओके। अब व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि जो अंग्रेज राजा थे, इंग्लिश जो लोग थे या राजा थे, वो वसाल्स के तौर पर फ्रेंच लोगों को फीफ दिया करते थे। तो और वो जो लैंड है उनकी उसकी देखरेख करने के चक्कर में उनको फ्रांस के, इसका मतलब फ्रांस के जो लोग थे वो डोमिनेंट थे। इसका मतलब फ्रांस के राजा जो थे वो उनका डोमिनेंस था इंग्लिश राजाओं के ऊपर। तो इंग्लिश किंग्स हेल्ड टाइटल्स एंड लैंड। अच्छा, अब जो फ्रांस के लोग हैं, राजा जो हैं, वो उन लोगों को कुछ टाइटल्स दे दिया करते थे। जैसे आपने मनसबदारी के बारे में सुना होगा, या आपने देखा होगा कि जैसे जब इस्लाम हमारे यहाँ आया या जब मुगल एम्पायर था, तो जैसे जयपुर में आपने नाम सुना होगा सवाई सिंह, सवाई मान सिंह। तो ये इस तरह की पदवियां मुगल बादशाहों के द्वारा दी जाती थी। सवाई मतलब बाकी लोगों से 1.25 गुना ज्यादा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि राजा कौन है, मुगल, और उसके अंडर है बाकी के सारे लोग। बिल्कुल ऐसे ही वहां पे हुआ कि इंग्लिश किंग्स हेल्ड टाइटल्स एंड लैंड इन फ्रांस। अब वो फ्रांस के एरिया में उनके कुछ एरियाज थे जिसके ऊपर वो मान लीजिए भेड़ पालन करवा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, और उससे जो कुछ भी आ रहा है वो अंग्रेज राजाओं को वो टैक्स के रूप में देते, जिसको मैंने फीफ कहा है। फील्टी भी एक वर्ड यूज होता है। एंड फ्रेंच किंग्स ऑलवेज सिस्टमैटिकली चेक द ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश किंग्स। और वो जो अपना टाइटल रखते थे तो उसमें फ्रांस के जो लोग, जो राजा होते थे, वो जानबूझ करके दे यूज टू कीप द इंग्लिश लॉर्ड एंड द इंग्लिश किंग्स इन चेक, मतलब कंट्रोल करके रखा करते थे उनको। अब इससे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए और उसने किस चीज को जन्म दिया, 100 ईयर्स ऑफ वॉर।
ओके, अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, फ्रांस जो है हमेशा से इंग्लिश लैंड को हड़प लेता था। जब कभी भी इंग्लिश लोग थोड़ा सा ग्रोथ करते तो जो फ्रांस के राजा है वो उसको आकर के कंप्लीट कर लेते। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था कि लैंड ओनिंग हुई है, उसमें सबसे लास्ट में कौन सा देश जीता गया या कौन सा एरिया जीता गया? क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वी गेट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, हाउ इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, तो सबको मालूम है कि जब पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं या इंग्लिश राजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, है ना, ये सारी चीजें एक हुई। अच्छा, ये जो यूनिफिकेशन 7 में हुआ क्वीन के टाइम में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन एक इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कई बार, जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं डायरेक्ट, भाई ये क्वेश्चन कहां से आया। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दैट which was the last part of England which was taken into the control of English kings, and that was Scotland। और आपको पता है कि स्कॉटलैंड जो था वो हमेशा से फ्रांस के अंडर था, लेकिन ये जो 100 years ऑफ वॉर में जाकर के एक बहुत ही पॉजिटिव चीज क्या हुई कि जो स्कॉटलैंड है ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, और स्कॉटलैंड जब इनके अंडर आ गया तो एक तरह से काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात आती है कि मैं कुछ राजाओं के नाम लेता हूं आपके सामने, कि जैसे एज आई टोल्ड यू दैट इन 100 years ऑफ वॉर, जो कि 100 years नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। ओके, उसका टाइमिंग आपसे पूछेंगे एग्जाम में, मैं बार बार बता रहा हूं, 1337 से 1453। अच्छा, होनी चाहिए वो इस तरफ इंग्लैंड में और फ्रांस में, तो ये लोग दे आर फाइटिंग द वॉर्स ऑफ डोमिनेंस, और उधर 1553 और उससे आगे कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या चल रहा था, टर्क्स की लड़ाइयां चल रही थी, टर्क्स यूज्ड टू अटैक। तो वो रेनेसा कैसे आया, मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जाम में कि उन्होंने कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एंड रिजल्ट जो था 100 years ऑफ वॉर का वो क्या था। तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे लॉर्ड्स हैं ये आपस में लड़ते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, लेकिन जैसे जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स लड़ते थे तो उनके यूनिफाइड कैवलरी नहीं हुआ करती थी, उनकी एक आर्मी नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे 100 years ऑफ वॉर का एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंग्लैंड सॉ द ह्यूज एंड मैसिव आर्मीज, क्योंकि ये धीरे धीरे एरिया संगठित होते चले गए और नेशनलिज्म बिल्ड हुआ, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1422 में जब ये वॉर चल रही थी, 1422, इसमें जोन ऑफ आर्क का रेफरेंस आता है। एक्चुअल में एक राजा हुआ है फ्रांस का, जिसको 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूं शॉर्ट में, कि 1422 की डेट पूछते हैं क्योंकि उसमें जोन ऑफ आर्क को जला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, नॉर्मंडी। क्योंकि क्या हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस जो है उसने क्या किया, एक हिस्सा नॉर्मंडी बोलते हैं जिसको, दे लॉस्ट इट टू इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश लोग जीत गए, और आपको मालूम है कि इंग्लिश लोगों ने ही जो वो लड़की थी जोन ऑफ, जिसके ऊपर बर्नार्ड शॉ ने ड्रामा भी लिखा है, सेंट जॉन, उसने वहां का जो राजा था, राजा नहीं था, लड़का था, राजा का लड़का, प्रिंस बोलते हैं उसको। तो उसके पास वो गई और उसने कहा कि मेरे में अंदर सुपर नेचुरल क्वालिटीज है, और किस तरह से उसने को जिताने में मदद की। और एक पर्टिकुलर एरिया जो फ्रांस हार गया था, बरगंडी, तो बाद में वो बरगंडियंस ने इसको जोन ऑफ आर्क को दे पुट हर ऑन स्टेक और दे बर्न्ट हर अलाइव। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है 100 years ऑफ वॉर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि एक सीज ऑफ ऑर्लिन्स करके एक टर्म एग्जाम में पूछी गई है, सीज, SIEGE, सीज, सीज ऑफ ऑर्लिन्स, ORLEANS, इसका डेट पूछा गया है। सो सीज ऑफ ऑर्लिन्स एक एरिया है, इसको किस तरह से काबू किया गया और कब जीते, तो 1429 के अंदर ये बात आती है, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो सीज ऑफ ऑर्लिन्स है उस पर क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि सीज ऑफ ऑर्लिन्स के बाद जो इंग्लिश लोग हैं ये धीरे धीरे ताकतवर होने लगते हैं, और ऐसे करके ये जो वॉर है धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ती है।
इसीलिए सीज ऑफ ऑर्लिन्स पे क्वेश्चन आता है दैट व्हेन सीज ऑफ ऑर्लिन अकर्ड, इट अकर्ड इन 1429 एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अनाउंस्ड अ न्यू होप एंड बिगनिंग फॉर इंग्लिश। ठीक है, फिर आता है कि मैं इसको अगर कवर करूं इस पूरे लेक्चर को कि हमें इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर है इंग्लिश लोगों को जिताने में एंड दैट इज कि 1347 से 1351 के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेग फैला था वहां पे, जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक डेथ थी इसमें फ्रांस की तो 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई और इंग्लिश जो साइड थी उसकी लगभग 20 to 30% पॉपुलेशन खत्म हुई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्रांस की कमर टूट गई तो ऑब्वियसली इंग्लिश लोगों ने उनको हरा दिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनको जब टीचर पढ़ाने बैठता है नेट की क्लास में, तो अगर मान लीजिए एक तो टीचर ये कह सकता है कि वो बाकायदा टेक्स्ट ले और उसको लाइन टू लाइन पढ़े तो बच्चे समझ में आए, बिकॉज वी आर मोर प्रोन टू रीड पोइट्री, ड्रामा, लिटरेरी टर्म्स, literary criticism and all, but we never pay attention to, but you mostly find that two three questions, they ask us from all these things. अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि 100 years of war है, उसके एंड में आकर के वॉर्स ऑफ क्या है, वॉर्स ऑफ रोजेस के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन इतना सीख लो कि एट द एंड ऑफ द 100 years of war ये इनके खुद के अंग्रेजों के खानदानों के अंदर जो आपस में लड़ाई जो स्टार्ट होती है इसको हम लोग कहते हैं 100 वॉर्स ऑफ रोजेस। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं कि व्हाट वर द एंड रिजल्ट एंड व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ और से व्हाट वाज अचीव्ड आफ्टर द 100 years of war। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, दैट प्रोफेशनल ट्रूप्स इमर्ज्ड। तो हम देखते हैं कि जब चौसर का जो नाइट है वो एक मर्सिनरी सिपाही है, मतलब कि वो खुद बताता है कि मैं फलानी फलानी जगह जाकर के लड़ा हूं एंड आई हैव फॉट फॉर मनी ऑल्सो। तो इससे क्या पता चलता है कि पहले दे यूज टू फाइट फॉर देयर ऑनर, फॉर देयर पेट्रियोटिज्म, फॉर देयर नेशनैलिटी, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड हायरिंग। और आपको मालूम है कि जब हम हायर करते हैं तो हम अपनी बड़ी सी एक ट्रूप इकट्ठी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि आफ्टर रोमन एम्पायर द वेस्टर्न इंग्लैंड फर्स्ट टाइम सॉ अ होल लार्ज ट्रूप्स एंड आर्मी एंड ऑल, एक ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये जब आर्मी बड़ी होती है तो क्या रिजल्ट निकलते हैं? when we see in a country that the army, the size of army is increasing, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो उस हथियारों को बनाने की कंपनियां हैं वो फ्लरिश करती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बिजनेस मिलता है, वॉर के साथ में बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड। सो प्रोफेशनल ट्रूप्स दे स्टार्टेड कमिंग अप। अच्छा, उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस हैड यील्डेड टू अ डेमोक्रेटाइजेशन। आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैग्ना कार्टा की बात करेंगे आज हम क्लास में। क्या हुआ कि जब धीरे धीरे जब एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस जो है, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस का क्या मतलब होता है? राजा लोग जो अपने ऑनर के लिए लड़वाते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि पीपल who are giving money to the king, when he's fighting, so later on barons or the people who have money, they become important। तो इसका मतलब है कि एक डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है। डेमोक्रेटाइजेशन कैसे हो जाता है कि राजा अपने ऑनर की लड़ाई के चक्कर में उन लोगों का फाइनेंशियल गुलाम बन जाता है जिनसे वो पैसा लेता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे अशोका द ग्रेट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कहते हैं कि जिस लड़की को वो पसंद करते थे, एक उनकी शादी ऑलरेडी हो रखी थी, लेकिन जिस लड़की को वो अपनी एक फिर से शादी करना चाहते थे, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी। तो उसने यही कहा कि मैं आपको ये जो कलिंग का युद्ध है इसके लिए पैसे मतलब उधार दूंगा अगर आप मेरी लड़की को सबसे बड़ी रानी बनाओ। तो ये जो पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के साथ में कैसे फाइनेंशियल थिंग्स आर एसोसिएटेड, कई बार जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर्स इन द कमिंग टाइम, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, कि अवेयर ऑफ दैट कि प्रोफेशनल ट्रूप्स जब इंक्रीज हुई तो साथ साथ में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब कि आम आदमी के हाथ में धीरे धीरे पावर आनी स्टार्ट हो गई, पावर बढ़ गई, वेपनरी बढ़ गई, वेपन्स
जब लोगों के हाथ में आ गए, तो धीरे धीरे हम नोटिस करते हैं कि वेपन के साथ साथ कहीं ना कहीं पावर इज एसोसिएटेड. ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस क्लास, एंड दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म. कि आपके अंदर पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे तो थोड़ा सा मिक्स बाउंड्रीज थी. सो दे डिड नॉट हैव अ नेशनल प्राइड कि भाई वो फ्रांस है और ये इंग्लैंड है. लेकिन अब आपने यू हैव मार्क्ड दैट दिस इज अवर बाउंड्री. सो एक सेंस ऑफ नेशनलिटी आ जाती है, नेशनलिज्म आ जाता है. जैसे अगर आप भारत को देखो तो कभी कभी हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत तक शायद हिंदुस्तान था, और वो जो नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम नेपाली थे, तो अब हम कई बार हंसते हैं उनके ऊपर कि अगर राम नेपाली थे तो इसका मतलब है नेपाल वॉज पार्ट ऑफ इंडिया. सोच के देखो एक बार के लिए. तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पुराने जमाने की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे इफ यू रीड रामायण एंड महाभारत वेरी सीरियसली, देन यू कम टू नो कि छोटे छोटे और राजा भी हुआ करते थे, और कैसे जो बड़े राजा हैं वो दूसरे राजाओं को कंट्रोल कर लिया करते थे, और वो जो टेरिटरी है वो टेरिटरी को वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा देश भी अभी भी टुकड़ों में बटा होता, और उसका एक खामियाजा हम कश्मीर के रूप में अभी भी भुगत रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि किस तरह से द राइज ऑफ नेशनलिज्म उत्पन्न होता है, एंड दैट वाज द 100 years of war. ठीक है. फिर आर्टिलरी बिकेम इंपॉर्टेंट. आर्टिलरी का मतलब है हथियार वगैरह, वो इंपॉर्टेंट हो गए. ठीक है. फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मीज के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को. ठीक है. और वॉर्स ऑफ रोजीज का जन्म हुआ लास्ट में, कि जब 100 years ऑफ वॉर खत्म होती है तो 1455 से 1487 तक वॉर्स ऑफ रोजीज चलती है. तो हाउस ऑफ यॉर्क एंड लंकाशायर में, वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा. अब आज मैं डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा दो दैट जब मैं बात करता हूं कि जो 100 years ऑफ वॉर है वो हाउस ऑफ प्लेंटजेंट, दोज हु ओके, हाउस ऑफ प्लेंटजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये हाउस ऑफ प्लेंटजेंट है, किंग जॉन, उन्होंने मैग्ना कार्टा को साइन किया. अब पहले तो मुझे ये बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट मैग्ना कार्टा? लिख के बताइए. गिव मी अ रिस्पॉन्स दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा पे कई बार 3-4 बार क्वेश्चन आया है नेट के अंदर, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन अदर सेट एग्जाम्स. बताइए, कैन यू हियर मी? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? हैव यू एवर हर्ड अबाउट मैग्ना कार्टा? अभी 3 लिटरेचर फेस्टिवल, बिकॉज आई लिव इन जयपुर एंड जयपुर इज फेमस फॉर लिटरेचर फेस्टिवल. तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मैग्ना कार्टा की ओरिजिनल कॉपी मेरे ख्याल से 3 साल पहले आई थी, एंड इट वाज क्वाइट people were excited that and even me I saw that copy of Magna Carta over there. तो Magna Carta क्यों important है? Why we are so crazy about Magna Carta? कोई आंसर आपकी तरफ से नहीं आ रहा है. ओके, सो Mr. Malik, like what is Magna Carta? Magna Carta का मतलब पहले तो आप लिख लीजिए. Magna का मतलब है ग्रेट से. ओके, सो द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, दैट इज द मीनिंग. दे कैन आस्क यू. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन वाज इट साइंड? इट वाज साइंड इन 1215. 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं. ओके, कि जो बैरन्स थे, बैरन्स राजा की उल जुलूल जो द पावर ऑफ डिविनिटी जो मानते हैं ना, लाइक कि भाई राजा जो है वो ये मानता है कि मैं डिवाइन हूं. वो जो डिविनिटी है वो कहीं किसी हद तक कम हुई, बिकॉज बैरन्स दे रीच्ड द पार्लियामेंट एंड दे पुट अ प्रेशर ऑन किंग, एंड कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर राजा ने साइन किया पहली बार कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मांगे मानता हूं. इसका मतलब है ये डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ एक पहला स्टेप है. इसीलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मैं आपसे वसाल के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं फीफ के बारे में बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं लेक्चर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस देखें एग्जाम में तो आपको याद आए कि हाँ वो चीज क्लास में डिस्कस हुई थी. ओके, ये 15 जून 1215 को साइन हुआ. ओके, और एक और क्वेश्चन आ सकता है दैट लाइक हु फ्रेम्ड इट और हु रोट द रूल्स एंड ऑल. तो एक बात का और ध्यान रखिए कि इंग्लिश चर्च, हालांकि आपको थोड़ा सा इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल, क्योंकि जब हम चौसर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेटिकन सिटी के जो पोप्स हैं
वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ने देते लोगों को। ओके, लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा है, इस चार्टर के जो रूल्स हैं वो लिखे थे, इट वाज ड्राफ्टेड बाय आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। उनका नाम था स्टीफन लैंगस्टन, लिख लीजिए, स्टीफन लैंगटन, LANGTON। तो स्टीफन लैंगटन का नाम आ रहा है, 15 जून 1215 का नाम आ रहा है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने विंस्टर का नाम सुना होगा, WINDSOR। विंस्टर एक प्लेस है इंग्लैंड में, मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, आपने शेक्सपियर के ड्रामा में नाम सुना होगा। एक्चुअली दैट वाज द प्लेस नियर, उस जगह के आसपास मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है जिसका मतलब है ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। ओके, it was signed by King John in 1215. It was charted or written, the rules were written by the Archbishop of Canterbury. Canterbury क्या है कि 592 के आसपास जब एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी एंटर कर गई इंग्लैंड में, तो कैंट नाम की जगह पर जो सबसे पहले उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी चर्च की, उसको बोलते हैं कैंटरबरी, वो जगह थी। तो कैंटरबरी हैज ऑलवेज बीन द मेजर सीट ऑफ Christianity into England. Okay, and it is also said that Christianity somewhere brought democracy into England. ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में ना जाना पड़े बुक्स में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि Christianity is considered to be the harbinger of democracy into England, though it seems very paradoxical to some of us, लेकिन ये सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, तो मैग्ना कार्टा वाज फ्रेम्ड बाय, उसके जो रूल्स हैं वो लिखे गए थे स्टीफन लैंगस्टन, जो कि कैंटरबरी के आर्क बिशप से। आर्क बिशप क्या होता है? सबसे बड़ा बिशप। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको आज बता दी हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारी पोएम्स की तरफ। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास। देख लीजिए क्या टाइम हो गया है। गो टू माई वेबसाइट, I have uploaded 2 poems there on my blog. Go to my website mukeshparik.com, www.mukeshparik.com either, or you can go to the another website englishcosmos.org. आप बताइए मैंने कौन सी 2 poems अपलोड किए हैं? Tell me which 2 poems I have uploaded. Tell me which 2 poems I have uploaded. Go to my website. अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसको स्प्लिट कर लीजिए, so that it will be very easy for us. You will be reading line by line and I'll be explaining the meaning to you. Go to my website mukeshparik.com or englishcosmos.org. It is written there, FB Live class 22 जुलाई। मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप लिख के बताएंगे कौन सी पोएम, पहली पोएम का नाम बताइए, चलिए कौन सी पोएम अपलोडेड है वहां पे। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड बैच ऑनलाइन। 1 अगस्त के आसपास हम स्टार्ट कर देंगे, उसके एडमिशन अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जो जो समय बीतेगा और एग्जाम की डेट नजदीक आएगी, देन यू विल रियली रियलाइज कि काश हम पढ़ लेते लॉकडाउन के अंदर। So those who are not still be very serious for all these things should contact me as soon as possible, so that they can understand and they can take, you know, the high class study material from me. आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है बच्चों। Go to my website, go to my blog there. I have uploaded 2 poems. जॉन डन की पोएम का नाम बताइए। Woman's Constancy, that's great. चलिए, Woman's Constancy, I'm reading this poem for you. Now, जैसे हमने गुड मॉरो एक पोएम पढ़ी थी जॉन डन की, उसके बाद मैंने आपको बैकन का एक ऐसे पढ़ाया था। सो दिस हाफ एन आवर क्लास आई विल बी ऑलवेज बी टेकिंग, वेयर आई विल बी टीचिंग सम टेक्सचुअल पार्ट, चाहे वो होगा एलिजाबेथन एज से, लाइक आई एम प्लानिंग फॉर टुमारो और से डे आफ्टर टुमारो के वी विल रीड सम important quotations from the plays of Shakespeare. Okay, I'm planning. अच्छा, इससे पहले कि मैं ये पोएम पढ़ाऊँ, एक और बात बता दूं कि मैंने लगभग एक ग्रुप को छोड़कर सभी ग्रुप्स के ऊपर आने वाला जो हमारा सेमिनार है उसकी डिटेल डाल दी है, दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वेबिनार। सेमिनार बोल गया गलती से, वी कॉल देम वेबिनार। आई विल बी इनवाइटिंग
अब मैं बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करने की बजाय सोच रहा हूं कि नेट के स्टूडेंट्स या रिसर्च स्कॉलर्स पेपर पढ़ें. दैट इज माय इंटेंशन. क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस के जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनको बेचारों को कभी भी कहीं चांस नहीं मिलता है. पर मैं अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस में भी उनको पेपर पढ़वाता रहता हूँ. कि मैंने कई अच्छे अच्छे पेपर्स पढ़ते हुए मेरे स्टूडेंट्स के वीडियोज अपलोड कर रखे हैं फेसबुक पे. तो जो सीरियसली क्योंकि जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं वही पेपर रीड करेंगे, बाकी लोग भी कर सकते हैं, या दे कैन लर्न बाय लुकिंग एट अस. टॉपिक इज गोइंग टू बी फेमिनिज्म. Feminism is a broad term, there are different kinds of feminisms these days. All the related issues like queer theory. Okay, तो फेमिनिज्म का जो सेमिनार अभी हमने टाइम लिया है, उसके बाद वी विल डिसाइड द डेट एंड आई एम इनवाइटिंग द एब्स्ट्रैक्ट्स. एक स्टूडेंट को मैंने अभी लिखा अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजो, तो उसने अपना बायोडेटा भेज दिया. सो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है पेपर किस टॉपिक पे पढ़ोगे, उस पेपर के जो मुख्य बिंदु है. आपको नेट में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारा एक सेक्शन है 1 यूनिट इज डिवोटेड टू रिसर्च इन इंग्लिश. तो आप एक टॉपिक लिखिए आज और उसको इंटरनेट पे स्टडी कीजिए. नहीं हो तो मुझे कहिए, आई विल गिव यू सम स्टडी मटेरियल. हाउ टू राइट अ गुड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर. राइट डाउन हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ रिसर्च पेपर. रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इसको पढ़िए जाकर के. इफ यू कांट रीड यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू अबाउट दैट. अब आते हैं पोएम पे. वुमेन्स कॉन्स्टेंसी, अ वेरी लेस नोन पोएम ऑफ जॉर्डन. क्योंकि हम जॉर्डन की एक्सटेसी बहुत पढ़ लेते हैं, वैलेडिक्टरी पोएम्स पढ़ लेते हैं. वैलेडिक्टरी पोएम से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है. लिखिए, हम लोग ज्यादातर एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स पढ़ते हैं. एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है जो एंथोलॉजी में छपती है. एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स. और एक राइटर जो अलग अलग पोएम्स लिखता है, उसके अंदर एक कई बार क्या होता है कि कुछ पोएम्स ज्यादा फेमस हो जाती हैं और कुछ नहीं होती हैं. और हमें वो कई बार क्या करते हैं, अनफेमस या जो पोएम्स है उनमें से क्वेश्चन पूछते हैं. तो वैलेडिक्टरी जो पोएम्स हैं, वैलेडिक्टरी का मतलब होता है अलविदा, किसी को लास्ट में बाय बाय कहना. तो जॉर्डन हैज रिटन 3 वैलेडिक्शन पोएम्स. मैं तीनों वैलेडिक्शन पोएम्स के नाम बता रहा हूं आपको. फर्स्ट इज वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. लिख लीजिए, वैलेडिक्शन, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं. वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, MOURNING, कि हस्बैंड कहीं जा रहा है, वाइफ रो रही है तो वो मना कर रहा है कि भाई रोना नहीं है. सेकेंड इज अ वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग, ये भी रोने पर है. बोथ द पोएम्स आर. इज अ वैलेडिक्शन ऑफ द बुक, अ वैलेडिक्शन ऑफ द बुक. बाकी आपको एक टास्क दे रहा हूं आज, यू जस्ट सर्च के और भी वैलेडिक्शन पोएम्स लिखिए क्या. दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेडिक्शन पोएम्स ऑफ जॉर्डन. अब आते हैं वुमेन्स कॉन्स्टेंसी. जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंसी? लॉयल्टी ऑफ अ वुमन. तो आपको मालूम है कि जॉर्डन इज नोटोरियस फॉर मिसोजिनिस्टिक आइडियाज. का मतलब वो औरतों के थोड़ा सा खिलाफ लिखता है. कुछ जगह पर वो मतलब पेट्रियार्कल एटीट्यूड तो आपको पता ही है ना. ऑल द राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज मोस्टली दे हैव पेट्रियार्कल एटीट्यूड. ओके, सो वुमेन्स कॉन्स्टेंसी में वो पूछ रहा है कि नाउ दाउ हैज लव्ड मी 1 होल डे, कि तूने पूरे दिन मुझे प्यार किया. एंड टुमारो व्हेन यू लीवस्ट व्हाट विल्ट दाउ से, कि अब तू यहां से जाएगी तो तू क्या बोलेगी. विल्ट दाउ देन एंटीडेट सम न्यू मेड वाउ, क्या तू कोई नई कसमें खाएगी अब. इट मीन्स द राइटर इज आस्किंग अ काइंड ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन टू द बिलवड, कि वो उसको सिद्ध कर रहा है. ही इज प्रूविंग द बिलवड दैट शी इज नॉट फेथफुल, शी इज नॉट लॉयल टू हिम, दो शी हैज पास्ड अ होल डे विद हिम, बट नाउ दैट शी विल लीव हिम and will make new vows. Vows means love vows. Or say that now we are not just those persons which we were. और क्योंकि अच्छा, एक तरह से ये मिसोजिनिस्टिक पोएम है. और दूसरी जगह पर देखिए, आपको एक बात बताता हूं. हम लोग किसी भी लड़की को गलत कब कहते हैं? कब एक पेट्रियार्कल एटीट्यूड में जब मिसोजिनिस्टिक आइडियाज होते हैं, उसमें ही औरत की पावर छुपी हुई है.
अच्छा तेरे चलो बताओ कि देवदासी हो गई, कोई प्रोस्टिट्यूट हो गई, कोई कॉल गर्ल हो गई, आपने कभी नोटिस किया है कि वेनेवर, और एक लड़की है जो शादी तोड़ करके दूसरी शादी में जा रही है, अपनी मर्जी से शादी, इट मीन समवेयर शी इज एक्सरसाइजिंग हर पावर, पावर इन द सेंस लाइक यू नो दैट शी हैज अ से इन दीज मैटर्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एनीबडी, क्योंकि हमारा जो सेमिनार होने जा रहा है उसमें वी विल बी डिस्कसिंग दिस फेमिनिटी, कि भाई फेमिनिन होता क्या है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक लड़की को हम ऐसा कहते हैं, गाली निकालते हैं, बुरा कहते हैं, उसको हम स्लट बोलते हैं, इसका मतलब है शी इज पावरफुल और वो पेट्रियार्की को हजम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जैसे कहते हैं ना, एक दिए तले अंधेरा, एक पैराडॉक्स जो होता है, ये पैराडॉक्स इसी को कहते हैं कि जो लड़की है, शी हैज बीन शोन यू नो शी इज हैविंग हर ओन मेंटालिटी, शी हैज हर ओन डिसीजंस। तो वो उसको पूछ रहा है कि विल्ट दाउ देन एंटीडेट सम न्यू मेड वॉज। ओके, एंटी का मतलब बिफोर, ये ए एन टी आई नहीं है, देर आर टू एंटी प्रेफिक्सेस जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। ए एन टी आई मतलब नेगेटिव और ए एन टी ई मीन्स बिफोर। एंटीडेट सम न्यू मेड वॉव, कि तूने जो पहले, एंटीडेट मतलब पहले जो कस्में खाई है, क्या तू नई कस्में खाएगी किसी और के साथ। इसका मतलब है द गर्ल हैज बीन शोन एज सेक्सुअली प्रोमिस्कस, एक वर्ड है इंग्लिश में, and the second one is that she has her own will. Okay, और say that now we are not just those persons which we were. इसका मतलब है कि क्या हम वो नहीं है जो हम पहले थे। और that oaths made in reverential fear, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पे। रेवरेंशियल का मतलब होता है, रेवरेंशियल मीन्स रेस्पेक्ट, रेवरेंस, रेवरेंस में कहीं ना कहीं फियर होता है, तो इसीलिए राइटर ने लिखा रेवरेंशियल फियर। मतलब जब कोई दो प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्यार की कस्में खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर फियरफुल ऑफ द गॉड ऑफ, और से द लॉर्ड ऑफ लव, क्यूपिड। क्यूपिड के डर की वजह से जो तूने प्यार की, ऑफ लव, लव मीन्स यहाँ पे कैपिटल लव मीन्स माइंड इज दैट गॉड ऑफ लव, क्यूपिड बोलते हैं जिसको, एंड हिज रैथ। और ये बात समझ में आ रही है, रैथ मीन्स नाराजगी, कि कहीं गॉड ऑफ नाराज ना हो जाए और ये प्यार हमारा मतलब कंजमेट ना हो, चरम पर ना जाए। क्या इसलिए तूने फोर्सवेयर, और तू फिर उसको भूल जाएगी कस्मों को। और एज ट्रू डेथ्स ट्रू मैरिजेस अनटाई, जैसे सच्ची में डेथ होती है, ऐसे ही ट्रू मैरिजेस भी। मैरिज का मतलब यहाँ पे शादी नहीं है, इट मीन्स जस्ट अ यूनियन। ओके, कि लगता है शादियां भी डेथ की तरह टूट जाती हैं, जैसे डेथ के वक्त आत्मा और बॉडी अलग हो जाती है। बाइंड बट टिल स्लीप, सॉरी एक लाइन छोड़ गया मैं। और सो लवर्स कॉन्ट्रैक्ट इमेजेस ऑफ दोज, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक ना एक दिन खत्म होता है। बाइंड बट टिल स्लीप, और वो आपस में जुड़े रहते हैं जब तक कि वो दे मेक लव एंड दे स्लीप। डेथ्स इमेज देन अनलूज, और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिजाबेथन इमेज आ रही है इसमें। एलिजाबेथन एज में जैसे हेमलेट की बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिलॉक्वी है ना, जिसमें नींद जो है, स्लीप हैज बीन कंपेयर्ड विद डेथ। ओके, तो याद रखना है आपको, इन न्यूमरस नंबर ऑफ पोएम्स आर देयर इन एलिजाबेथन एज व्हेन death is compared to sleep. Okay, so death's image, sleep is death's image, a very recurrent concept in Elizabethan poetry. Then unloose, और डेथ की वजह से सब चीज आपस में टूट जाती है। और योर ओन एंड टू जस्टिफाई, मतलब कि रात गई बात गई, मतलब जैसे ही एंड होएगा हमारे मिलन का और सुबह होगी, तो जैसे हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, जैसे किसी बॉडी से आत्मा अलग हो जाती है, और यही जस्टिफिकेशन है। लगता है कि हमारा प्यार केवल एक रात का है। फॉर हैविंग प्रपोज्ड चेंज एंड फॉल्सहुड, क्योंकि वी हैविंग पर्पस्ड चेंज एंड फॉल्सहुड, क्योंकि हमने लगता है पर्पसफुली, उसको कह रहा है अपनी बिलवड को, अपने साथी को, कि लगता है तूने जानबूझ करके झूठ को ओढ़ लिया है, टू बी ट्रू, सच होने के लिए। अगेन अ पैराडॉक्स इन द लाइन। वेन ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब पागल, समवन हु इज मैड। ल्यूनेटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऐसे कहा जाता है कि लूनर, चांद, द मून, लूना इज वन नेम ऑफ गॉडेस ऑफ मून, जिसको डायना, हेकेट और लूना बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको। ग्रीक माइथोलॉजी में और रोमन माइथोलॉजी में मून गॉडेस के 3 नाम है। डायना जब वो प्योर है और हेवन में है, हेकेट जब वो हेल में है, हेकेट,
और एक नाम है उनका ल्यूना, ल्यूना से बनता है ल्यूनर, ल्यूनर आपने सुना होगा। और लूनर का मतलब फुल मून का जब असर होता है हो जाते हैं लवर्स, क्योंकि आपने देखा होगा इट अफेक्ट्स वाटर, तो आपको पता है टाइड्स आते हैं, है ना। तो इससे राइटर जो ल्यूनेटिक वर्ड जो मैं वैसे समझा रहा हूं आपको, जब पूनम का दिन होता है द फुल मून, तो उस दिन ओवर इमोशनल हो जाते हैं पागल लोग। पागल मैं इसलिए कह रहा हूं, दोज हु आर इमोशनल। पामिस्ट्री में भी जिसका जो माइंड की जो लाइन है जिसको अपन बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, अगर वो चंद्र पर्वत की तरफ झुकी हुई होती है तो ऐसा मानते हैं कि आदमी बहुत इमोशनल है। तो वेन लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब यहां पे समझ रहे हो ना आप, कि लगता है तुमने फालतू में ही प्यार किया, फालतू में ही इमोशनल हुई। अगेंस्ट दिस एस्केप्स आई कुड डिस्प्यूट एंड कॉन्कर। मैं क्या फालतू की बात कर रहा हूं, राइटर कह रहा है मैं क्या फालतू का डिस्प्यूट कर रहा हूं, हो सकता है मैं जीत जाता तेरे से, इफ आई वुड विच आई एब्सटेन टू डू। लेकिन अब मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तेरे से इस तरह की बहस करूं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि द जेस्चर्स ऑफ द बिलवड, कहीं ना कहीं उसका पोस्चर, उसका जेस्चर, उसके हाव भाव ये है कि वो आफ्टर स्लीपिंग विद दैट पर्सन फॉर द होल नाइट शी वांट्स टू डिपार्ट। ओके, और तो वो थोड़ा चिढ़ रहा है जो लवर है। कैन यू सी मी? ओके, dispute and conquer if I would, which I abstain to do, for by tomorrow I may think so too. अब कल कल सोचूंगा इसके बारे में। The writer says that I will think about all these things tomorrow. Okay, so this was the first poem. Second is a holy sonnet. सबको पता होना चाहिए डिवाइन मेडिटेशंस, जॉन डन। हम अलग आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। होली सॉनेट्स को डिवाइन मेडिटेशंस भी कहते हैं, एंड famous for writing 19 divine sonnets. अब इसमें मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इसमें जो टाइटल है एट द राउंड अर्थ इमेजिन्ड कॉर्नर, ये इसका टाइटल है, मुझे बताइए कि इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म है। दिस इज द क्वेश्चन टू द होल क्लास। Which literary term the writer is using in this title at the round earth imagined corners? बताइए, I'll wait for your answer. Whatever you think you can answer. Holy sonnets at the round earth imagined corners. Name the literary term. कौन सी literary term writer यूज कर रहा है? Try. There are so many people who are watching me right now. Can you tell me the answer? Which literary term the writer is in this line at the round earth imagined corners? आप लोग अपना आंसर दो, तब तक मैं बार बार कह रहा हूं कि हम एक सेमिनार जिसको वेबिनार कहते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फेमिनिज्म पे। मैंने उसका एक राइट अप डाल दिया है फेसबुक पे, और जल्दी से जल्दी आप लोग जो अगस्त में जो नया बैच स्टार्ट वाला है उसके लिए एडमिशन्स ले लीजिए। धीरे धीरे एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है। Holy sonnets at the round earth imagined corners. Which literary term? Any idea? बड़ा देर से आंसर आ रहा है, कोई भी आंसर नहीं आ रहा। Can you give me any answer? No answer. चलिए, let me give you the answer. Round earth imagined corners. क्या राउंड चीज के कॉर्नर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सो दिस इज कॉल्ड द पैराडॉक्स। अच्छा, 20th सेंचुरी में एक बुक है जो कहते हैं कि इट समवेयर डिस्कस्ड द लिटरेरी एलिमेंट्स फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिली तो बिल्कुल नहीं है इसमें। लिखिए, एक बुक का नाम लिखिए, द वेल रॉट अर्न, WROUGHT, द वेल रॉट अर्न। हैरोल्ड ब्लूम की एक बुक है। जब हम आपको पोएम्स पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है हमने पहले बहुत सारा क्रिटिसिज्म पढ़ा है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर टीचिंग यू दीज थिंग्स। एंड आप भी नहीं पढ़ा पाओगे अगर आप लोग बहुत सारा क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ोगे। तो हैरोल्ड ब्लूम की जो बुक है, न्यू क्रिटिक हुए हैं, वो न्यू क्रिटिसिज्म पे भी आपको लेक्चर देंगे। You can go to my YouTube channel and I have already uploaded a video on new criticism. उसको आप पढ़ लीजिए, वहां जाकर देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। At the round earth imagined corners, राइटर ने कहा है कि ये जो धरती है उसके imagined corners पे पैराडॉक्स यूज कर रहा है। Blow your trumpets angels. अच्छा, एंजल ट्रम्पेट्स कब बजाते हैं बताओ?
ट्रम्पेट्स कब कब बजाई जाती हैं क्रिश्चियनिटी में? यहां पर वो डूम्सडे की बात कर रहा है, प्रलय की बात कर रहा है, ओके, कैटेक्लिज्म की बात कर रहा है। अर्थात तुम एंजल्स अपनी ट्रम्पेट्स बजाना शुरू कर दो, एंड अराइज अराइज फ्रॉम डेथ। डेथ से कब अराइज होंगे? इन क्रिश्चियनिटी देयर एंड इन इस्लाम ऑल्सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डूम्सडे। एक और टर्म है इंग्लिश में डी डे, कैपिटल डी डे। डी डे मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, ओके। रेड लेटर डे और ईडीएम है, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। डूम्सडे, कैटाक्लिज्म, कयामत का दिन, प्रलय। हमारे हिंदुओं में भी प्रलय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हम कभी और बात करेंगे। सो राइटर कह रहा है कि रिजरेक्शन की बात, रिजरेक्शन इज द ओनली वर्ड विच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्राइस्ट। चलिए एक टर्म और लिखिए फटाफट से, पैशन ऑफ क्राइस्ट। लिखिए लिखिए, पैशन ऑफ क्राइस्ट। कितने बच्चे क्लास में जिनको पैशन ऑफ क्राइस्ट का मतलब पता है? बताइए। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ such classes online that we don't get the answer immediately. पैशन ऑफ क्राइस्ट। कितने बच्चे क्लास में जिनको पैशन ऑफ क्राइस्ट का मतलब पता है? द डे ऑफ जजमेंट, हाँ बिल्कुल, डूम्सडे का मतलब डे ऑफ जजमेंट होता है। पैशन ऑफ क्राइस्ट का मतलब पता है क्या? नहीं मालूम। पैशन ऑफ क्राइस्ट का एक टर्म लिख लीजिए आप, वेल रॉट अर्न, मैंने बहुत सारे, लव ऑफ क्राइस्ट, नो। पैशन ऑफ क्राइस्ट का मतलब होता है, क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, सूली पे, सूली समझते हो ना, जब उनको एक बहुत बड़े क्रूसीफाई किया गया, जब तो कील ठोकी गई उनके हाथों में, उससे पहले उनको पीटते हुए लाया गया, उनको एक कांटों का क्राउन पहनाया गया, उनके पैरों में हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके सिर में ताज पहनाया गया। तो वो जो खून आया, वो जो टॉर्चर हुए, उसको बोलते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट। तो पैशन हैज अनदर मीनिंग। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह के, जैसे डायस्पोरा विद स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, बोथ है, वन हैज अ रिलीजियस मीनिंग, अनदर हैज अ सेक्युलर मीनिंग, ओके। क्राइस्ट रिडीम्स द सोल्स, ये आंसर नहीं है। पैशन ऑफ क्राइस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, अगर हम कभी भी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन लिटरेचर सपोज वी आर रीडिंग, देन वी शुड हैव सर्टेन आइडियाज क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल पाइटी, पाइटी एक बहुत बड़ी पेंटिंग का नाम है, ओके। तो अभी मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट वांटेड टू टीच यू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। अभी आप लिखिए, लिखिए नहीं, इसको देखिए, यू नंबरलेस इनफाइनाइट इन्फिनिटीज ऑफ सोल्स। इन्फिनिटीज ऑफ सोल का मतलब है जितनी भी आत्माएं हैं जो कब्र के अंदर गई हुई हैं, अब वो उठ जाओ, और इनफाइनाइट नंबर, and to your scattered bodies go. So the first four line tell us crucifixion is not called passion of Christ. It is actually the before that period when he was whipped and when he was tortured and all. Okay, अभी हम टॉपिक पर आ रहे हैं। डन का कौन सा सोनेट डिस्कस कर रहे हैं? गो टू माई वेबसाइट mukeshparik.com, go to my blog, the poem are already given, okay. So let me read the first four lines again. At the round earth's imagined corners, blow your trumpets, angels, and arise, arise from death, you numberless infinites of soul, and to your scattered bodies go. So what is the rhyme scheme? Blow, arise, infinites, go. So blow, arise, infinites, go. इसका मतलब है ABBA, एक राइम स्कीम है जो यूज की गई है। इसका मतलब एक क्वार्टेन बना दिया राइटर ने, and the writer has created an imagery of doomsday, okay. All whom the flood did, कौन कौन? जो फ्लड में मारे गए, did मतलब मर जाना, and fire shall overthrow, और वो लोग जिनको आगे फायर ओवरथ्रो करेगी। फायर बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी में हेल में कौन जाएगा? जो अननेचुरल डेथ मरेगा। तो जो अननेचुरल डेथ मरता है तो वो, और आपको पता है फायर कहाँ है? हेवन में, सॉरी हेल में। एक कॉन्सेप्ट है कि हेवन में है केवल लाइट, और लाइट के अंदर जो हीट होती है वो सारी की सारी है हेल में। सो इट्स डिवीजन, यू नो, कि जब हम लोग कोई भी लाइट देखते हैं तो उसमें तपन भी होती है, तो तपन जो है सारी की सारी हीट इज देयर इन द हेल, और जो लाइट है वो है हेवन में, और वहां पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है अंदर, ओके। सो राइटर सेज ऑल हुम द फ्लड डिड एंड फायर शैल ओवरथ्रो, ऑल हुम वॉर, जो लोग वॉर में मर गए, डर्थ, डर्थ का मतलब यहां पे कमी से है,
कमी का मतलब है जब अकाल पड़ा हो. एज, उम्र से मर गए हो. एग्स, व्हाट इज द एग्स? It's again the short form of plagues. Okay, they can ask you this question. So writer has made a list, like those people who died from different causes. War, dearth means kami, yani ki akal. Age, agues, tyrannies, again a satire on the king. Tyrannies, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, I earlier told you that John Donne is a Catholic, और कैथलिक लोगों पे बहुत अत्याचार एंग्लिकन राजाओं ने किए हैं. ओके, सो जिनको राजा की टिरनीज ने मार दिया. डेस्पेयर, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि जॉन डन वाज आल्सो ही वाज रिकरेंटली यूज्ड टू फॉल इन द फिट्स ऑफ डिप्रेशन. तो डेस्पेयर में भी लोग मर जाते हैं सुसाइड करके. ओके, लॉ का मतलब है कानून से जिनको मौत की सजा मिलती है. अगेन देयर इज अ सटायर ऑन द, जब डेस्पेयर की बात कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सटायर ऑन the social and political atmosphere of a particular place. Despair, law, chance का मतलब है अचानक से कोई एक्सीडेंट से कोई मर गया हो. hath slain, slew, slain, थर्ड फॉर्म ऑफ slay, यानी कत्ल करना, मार देना, यानी इन सब चीजों ने जिनको मारा है. and you, और तुम, whose eyes shall behold God, और तुम्हारी आंखें जो गॉड को देखेंगी. यार जो बच गए हैं या जो नहीं भी बचे हैं, क्योंकि इट इज सेड इन क्रिश्चियनिटी दैट ऑन डूम्सडे गॉड विल impersonate himself and come down to earth, and people will see the dead bodies, or the souls will see God face to face. Behold means to see. It shall behold God and never taste death. वो, और एक बार तुम्हारा अगर न्याय हो गया, the day of judgment भी बोलते हैं, once your judgment is done, you will never taste death's woe. So death is personified here. One who is woe का मतलब दुख. She is torturing you and you are tasting the woes of death. You will never taste them again, because once you have faced God को फेस करने के बाद तुम्हें ये सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी. For if above all these my sins abound. अब ये जो 4 लाइन है लास्ट की, उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज द बोहेमियन नेचर, बोहेमियन कैरेक्टर ऑफ जॉन डन. जॉन डन ने एक ऐसा लाइफ जिया था जवानी में जो बहुत सारी जैसे वुमनाइजर, ही वॉज अ वुमनाइजर. ओके, एंड तो उनको कई बार ऐसा लगता था कि शायद आई विल नॉट बी टेकन इनटू हेवन. हालांकि वो बहुत बड़े डीन बन गए थे चर्च के, आपको पता है. ही टुक द ओथ ऑफ एलिजियंस ऑल्सो. ही गॉट कन्वर्टेड इनटू Anglican Church, at the behest of James I. लेकिन उनको कभी ना कभी ऐसा लगता था कि शायद I am not the eligible person who will be taken into heaven. तो वो जो उनके अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इन होली सॉनेट्स में नजर आता है. ये बात आपको क्वेश्चन के तौर पे पूछेंगे. They sometimes ask a question in a very typical manner कि वो क्या दिखाना चाह रहा है. Though I am translating and elaborating and illustrating this sonnet, but इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं. If we know the background of John Donne, तो उसके बिना हम उनको नहीं समझ सकते. For का मतलब because. If above all these, इन सब चीजों के अलावा, my sins abound, मैं बहुत पापी हूं भगवान. मेरे abound का मतलब है बंधे हुए हैं. I'm bound with sins. 'Tis late to ask abundance of thy grace. गॉड से मैं ग्रेस नहीं मांग सकता. अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा. इट इज टू लेट. आई एम टू लेट नाउ. आई हैव ऑलरेडी कमिटेड सो मेनी इनन्यूमरेबल myriads ऑफ सिंस. बहुत सारे पाप मैंने कर दिए हैं. मैं भगवान से ग्रेस नहीं मांग सकता. व्हेन वी आर देयर, जब हम भगवान के सामने, हेयर ऑन दिस लोली ग्राउंड. दूसरा मतलब भगवान के सामने कब होंगे, तो कहां होंगे. लोली ग्राउंड का मतलब क्या बताइए यहां पे. लोली ग्राउंड मीन्स ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव, क्योंकि वो खोद करके नीचे आदमी को लेटा देते हैं ना. लोली ग्राउंड. टीच मी हाउ टू रिपेंट. तो वो भगवान है कि मुझे आप सिखाओ कि मैं कैसे पश्चाताप करूं. एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज दिस, अ कैथोलिक एलिमेंट इन द पोएम. कि कन्फेशन कब करते हैं वो लोग, आपको पता है लाइफ में कन्फेशन बहुत जरूरी है उनके कल्चर में. विदाउट प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे थोड़ा डाइग्रेस करते हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉपकिंस की पोएम फेलिक्स रेंडॉल के बारे में पता है. फेलिक्स रेंडॉल, इस पे क्वेश्चन नेट में आ रखा है ऑलरेडी. सो समटाइम्स इफ यू डोंट रीड दीज टेक्स्ट्स, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं.
So we should be aware about certain Christian elements which are strewn around in poems and other things. यहाँ पर the writer is talking about repent कहाँ किया जाता है? कैथोलिक चर्च में। तो क्योंकि वो धर्म बदल चुके हैं, बट उनका जैसे हेनरी एट थे, एलिजाबेथ के फादर, कहते हैं कि वो डिक्लेयर्डली प्रोटेस्टेंट बन गए थे, लेकिन उन्होंने मरते वक्त डेथ बेड के ऊपर लास्ट कन्फेशन किया था। तो मतलब क्या है इसका कि कई बार क्या होता है कि हम लोग शो करते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर से अपने परमात्मा से जो एक जुड़ाव है उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके। सो टीच मी हाउ टू रिपेंट, ओ गॉड टीच मी हाउ टू रिपेंट, मैं कैसे रिपेंट करूं। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर फॉस्टस का लास्ट सीन, वो जो एक मॉरल टीचिंग का नजर आता है आपको। डॉक्टर फॉस्टस लास्ट के आवर में इज वेरी मच इन ट्रबल, मेफिस्टोफेलिस आ गया है और वो उसकी सोल ले जाना चाहता है। ये सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। टीच मी हाउ टू रिपेंट, फॉर दैट इज एज गुड एज इफ दाउ हैडस्ट सील्ड माई पार्डन। Again, the king and God are given this equivalent plane over here, क्योंकि राजा सील लगाता है और पार्डन करता है, माफीनामा देता है, एंड गॉड here has been compared to a king, क्योंकि वो उसकी पार्डन, कि भगवान आप मुझे माफ कैसे करोगे, with thy blood। अब ये पूरी कहानी आ गई, ब्लड मतलब अब ये पूरी बिब्लिकल स्टोरी आ गई कि एडम और इव ने गार्डन ऑफ ईडन में जो सिन किया था गॉड के खिलाफ जाकर के, मीन्स दे कंज्यूमेट देयर पैशंस एंड दे मेड लव, दे एट दैट, मेटाफोरिकली दे एट दैट फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, एंड क्राइस्ट व्हेन केम ऑन अर्थ ही वाज क्रूसिफाइड एंड ही गेव हिज ब्लड। यहाँ पे आपको ना कुछ पैराबल्स पता होनी चाहिए क्रिश्चियनिटी की। पैराबल्स का मतलब होता है कुछ कहानियां बाइबल। बार क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को यह कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हें मेरा खून और मेरा मांस बचाएगा, तुम मेरा खून खाओ पियोगे, मेरा मांस खाओगे। तो पीपल यूज टू गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैसी बातें करते हैं आजकल। क्राइस्ट नाम बाद में पढ़ा था उनका, ही वॉज अ ज्यू, आपको पता होना चाहिए, एंड ही वॉज, ये सारी डिटेल मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप देखेंगे सभी होली सोनेट्स में क्राइस्ट के ब्लड की बात आती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एडम और इव ने जो पाप किया था उस पाप को धोने के लिए खून चाहिए। ये गॉड और क्राइस्ट के बीच में बात हुई है हेवन के अंदर। अगर हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं या जेनेसिस पढ़ते हैं तो उससे हमें ये बात पता चलती है बाइबल से कि गॉड ने कहा कि एडम और इव को ये हेवन में, हेल में जाना ही पड़ेगा, उनको डेथ आएगी आएगी, पहले वो अमर थे। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इनको कैसे उबारे, इनका कसूर नहीं है। क्राइस्ट कह रहे हैं, बिकॉज क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, वो वेरी कंपैशनेट बताए गए हैं। वो कह रहे हैं कि एडम और इव का कसूर नहीं है, सेटन का कसूर है, इनको क्यों आप सजा दे रहे हो हेल में जाने की। तो गॉड ने कहा कि ये द थ्योरी ऑफ कर्मा जिसको अपन बोलते हैं, फ्री विल, कि इनको हमने फ्री विल दे के भेजा था गार्डन ऑफ ईडन में कि तुम्हारी मर्जी है जो करो, उनको सब कुछ बता दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने ये पाप किया है। तो फिर गॉड ने, क्राइस्ट ने उनसे पूछा, गॉड से, उनके पापा से, उनके फादर से, कि इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो गॉड ने कहा कि कोई अपनी जान दे इनकी जगह, मतलब कोई इनका जुर्म कबूल कर ले। देन क्राइस्ट केम ऑन अर्थ एंड ही टुक द होल ब्लेम ऑफ दिस सिन ऑफ मैनकाइंड ऑन हिमसेल्फ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहता हूं आज, कि आपको मैं अगर आने वाली क्लासेस में ये पूछूं कि चलो बताओ क्राइस्ट का पहला मिरेकल क्या था, मान लो आपसे पूछ ले कि क्राइस्ट का विच वन वाज द फर्स्ट मिरेकल ऑफ क्राइस्ट, तो आप क्या जवाब दोगे बताओ। आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले वाटर को वाइन में कन्वर्ट किया था। मतलब उनकी डिविनिटी या उनके अंदर जो डिवाइन पावर है वो शो करना उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया, और ओवरऑल कितने मिरेकल्स किए उन्होंने, है ना। और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो उनके मिरेकल्स से इंग्लिश लिटरेचर में आ गई हैं। एंड जैसे अब ये लाइन है, इट्स ऑल बिब्लिकल स्टोरी एक्चुअली, एज इफ भगवान आप मुझे माफ कर दो ताकि मैं मतलब हेवन में चला जाऊं, एज इफ दाउ हैडस्ट सील्ड माई पार्डन विद दाई ब्लड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सील नहीं है, वो एक्चुअल में वाइन, वो ट्रांससब्सटेंशिएशन होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए यूकरिस्ट एक टर्म लिखिए, EUCHARIST, यूकरिस्ट, EUCHARIST, यूकरिस्ट।
यूकेरिस्ट लिख लिया, एक टर्म लिखिए ट्रांससब्सटेंशिएशन, ट्रांससब्सटेंशिएशन, ओके। यूकेरिस्ट और ट्रांससब्सटेंशिएशन आर द टू सेरेमनीज विच आर बैंक्वेट हॉल में, चर्च में इनको परफॉर्म किया जाता है कैथोलिक चर्चेज में, जिसमें ब्रेड, ब्राउन ब्रेड को रेड वाइन में डुबो करके प्रसाद दिया जाता है, एंड देन जो पोप है या जो प्रीस्ट है, बिशप है, वो प्रेयर पढ़ते हैं, और देन दे कंसिडर कि लिटरली ये जो ब्रेड है वो तो मांस, क्योंकि वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा ना वाइन में डुबोने के बाद, और रेड वाइन है वो क्राइस्ट का मांस है और वो हमारे लिए दिया गया है, उसने हमारे पाप को खत्म करने के लिए सूली पे चढ़ करके बहाया है, इसलिए ऐसे लेते हैं, हम उसको खाते हैं, और अब हम फील करते हैं कि अब हम हेवन में हैं। ठीक है, तो उनके बिल्कुल सही है, कुमकुम इज सेइंग बिल्कुल करेक्ट के उनके ब्लड में और उनके फ्लैश में ये पावर थी, क्योंकि वो डिवाइन थे, कि अगर उनको इंसान खा लेगा तो उसका एडम और इव का जो पाप है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्रिश्चियनिटी में कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोजेनी ऑफ क्राइस्ट, सॉरी एडम एंड इव, तो हम उनके पाप की सजा को भुगत रहे हैं। तो ये पोएम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसमें डूम्सडे का रेफरेंस आ रहा है, और इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन एलिमेंट्स आ रहे हैं, देयर इज अ सटायर आल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो इसी बहाने आपको एक अच्छी सी सोनेट पढ़ने का मौका मिला। इट्स मोर देन 1 hour and 10 minutes. I say let us call it a day for today, and जितने जल्दी हो सके एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपको और डिटेल में पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 10 बजे।